ترک صدر رجب طیب اردوان کا پاکستان کا 2 روزہ اہم دورہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کا خیر مقدم کیا۔ خود گاڑی ڈرائیو کر کے وزیر اعظم ہاؤس لائے، جہاں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ترک صدر اور ان کی اہلیہ سمیت وفد کے اعزاز میں ایوان صدر میں عشائیہ، صدر عارف علوی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، وفاقی وزراء سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ ترک صدر کے ساتھ اہم شخصیات پر مشتمل 60 رکنی وفد بھی آیا۔ دورے میں طیب اردوان وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کریں گے۔ کل پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ وفود کی سطح پر مذاکرات کے بعد کئی معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ ترک سفیر احسان مصطفیٰ کہتے ہیں اسلامو فوبیا کے خلاف ٹی وی چینل پر کام جاری ہے۔ ادھر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا ترک صدر کے دورہ پاکستان کا خیر مقدم۔ خالد مقبول صدیقی کی وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں شرکت، استعفیٰ واپس لینے کی تردید بھی کر دی۔ عمران خان نے سندھ کے متعلق اجلاس میں وزیر آئی ٹی کی شرکت پر اظہار اطمینان کیا۔ ادھر ایم کیو ایم کے ترجمان کا کہنا ہے کہ خالد مقبول صدیقی نے وزارت سے استعفیٰ واپس نہیں لیا۔ اسد عمر سے معاہدوں پر عمل درآمد کے سلسلے میں ملاقات کی۔ ملاقات کے آخر میں وزیر اعظم بھی آ گئے تھے۔ حکومت اور کاف لیگ ایک پیج پر ہیں، تمام بحرانوں کا مل کر مقابلہ کریں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کی میڈیا سے گفتگو، بولے موجودہ بحران گزشتہ 10 سال کی غلط پالیسیز کا نتیجہ ہے۔ بلدیاتی ادارے ہوتے تو حکومت کو پیچیدگیوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کو جھٹکا، وزیر خزانہ ساجد جاوید نے استعفیٰ دے دیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ساجد جاوید نے عہدہ بورس جانسن سے اختلافات کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ برطانوی امیگریشن قوانین میں تبدیلی کامن ویلتھ ممالک کے لیے سودمند پوائنٹ سسٹم سے پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور سری لنکا کے ہنرمند افراد فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ماہر قانون انعام رانا کی 92 نیوز سے خصوصی بات چیت۔ جبرالٹر برطانیہ کا ہے، بریگزٹ کے بعد برطانیہ برسلز کے بیوروکریٹ کنٹرول سے نکل کر دنیا بھر میں براہ راست تجارت کر سکے گا۔ ہاؤس آف لارڈز کے ممبر لارڈ نذیر احمد کی بارسلونا میں 92 نیوز سے خصوصی گفتگو۔ نوجوانوں میں جرائم کی روک تھام کے لیے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی کانفرنس، ہماری یوتھ ہمارا مستقبل کانفرنس میں میئرز، کاؤنسلرز، مختلف کمیونٹی شخصیات اور اعلیٰ حکومتی عہدیدار شریک ہوئے۔ جرائم کی روک تھام کے لیے شہری پولیس سے بھرپور تعاون کریں، مقررین کا خطاب۔ لوٹن ٹاؤن ہال میں نوجوان مصنف اور صحافی اسرار راجہ کی کتاب کشمیر کا المیہ کی تقریب رونمائی، مقامی سیاسی، سماجی اور ادبی شخصیات کی بھرپور شرکت۔ کتاب بھارتی مظالم کی داستانیں بیان کر رہی ہے، مقررین کا صاحب کتاب کو خراج تحسین۔ صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان کا دورہ ملیشیا جاری، ملیشیا کی اعلیٰ قیادت، وزیر خارجہ، نائب وزیر اعظم، اراکین پارلیمنٹ سے بالمشافہ ملاقاتیں۔ کشمیر کا مقدمہ پیش کیا، ملیشین وزیر خارجہ نے آزاد کشمیر میں سرمایہ کاری کی پیشکش کر دی۔ ملائیشیا میں کام کرنے والے پاکستانی محنت کشوں کو مالی تحفظ مل گیا۔ وزارت برائے اوورسیز پاکستانیز اور سوشل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ملیشیا کے مابین اہم معاہدے پر دستخط۔ ملیشیا میں زخمی یا جاں بحق ہونے والے پاکستانیوں کو مالی امداد مل سکے گی۔ کبڈی ورلڈ کپ، پاکستان لگاتار 2 گروپ میچ جیت کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں کھیلے گئے میچ میں قومی ٹیم نے آسٹریلیا کو 25 کے مقابلے میں 62 پوائنٹس کے بھاری مارجن سے شکست دی۔ دیگر میچوں میں بھارت نے ایران کو شکست دے دی، جرمنی نے سیرا لیون کو 14 کے مقابلے میں 43 پوائنٹ سے ہرا دیا۔ آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری۔ سیاحتی مقام پیر چناسی نے بھی سفید چادر اوڑھ لی، سیاحوں پر سحر طاری۔
लोगों का हल्ला गुल्ला, एक दूसरे पर बर्फ के गोले बरसाते रहे। उधर अस्तोर में भी बर्फबारी, हर तरफ सफेदी बिखर गई। और वसीम अकरम और उनकी अहलिया शनेरा जल्द ही पाकिस्तानी फिल्म में अदाकारी के जौहर दिखाते नजर आएंगे। फिल्म मनी बैक गारंटी की शूटिंग जारी, फिल्म में दोनों हकीकी जोड़े के तौर पर दिखाई देंगे। फैसल कुरैशी की हदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म में कई नामवर फनकार जलवागर होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना के हमरा तुर्क सदर, उनकी अहलिया और वफ्द का नूर खान एयरबेस पर शानदार इस्तकबाल किया। खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर आज़म हाउस लेकर गए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना के हमराह रेड कारपेट इस्तकबाल किया। तुर्क सदर और खातून अव्वल को गुलदस्ते पेश किए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्क सदर के लिए गाड़ी खुद ड्राइव की और उन्हें लेकर वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे, जहां दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। तुर्क सदर को मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सदर एर्दोगान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना भी किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से काबीना अराकीन का तारुफ कराया, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी तुर्क वफ़द से मुसाफा किया। तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में इमरान खान से मुलाकात की। बाद अज़ां ऐवान सदर पहुंचे, जहां सदर मुमलिकत ने इस्तकबाल किया। 2 तरफ़ा उमूर पर बातचीत की गई, जबकि ऐवान सदर में तुर्क सदर के एजाज़ में इशाइये का भी एहतमाम किया गया। तुर्क सदर कल 11 बजे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। जुमे की नमाज फैसल मस्जिद में अदा करेंगे। कल रात नूर खान एयरबेस से वतन वापस रवाना हो जाएंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी तुर्क सदर को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा और अपने ट्वीट में कहा, कश्मीरी अवाम के हक में आवाज बुलंद करने पर आपके शुक्रगुजार हैं। अपोजिशन जमातें पार्लियामेंट तशरीफ लाने पर खुशामदीद कहती हैं। आगे बढ़ते हुए बात बिलावल भुट्टो की, जो जेवी ओपल केस में नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम को मुतमईन न कर सके। नैब ने 35 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा थमा दिया। बिलावल ने गिरफ्तारी की सूरत में आसिफा को मुतबादिल करार दे दिया। शहजाद अकबर कहते आसिफ अली जरदारी के सदर बनते ही बिलावल अमीर हो गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जेवी ओपल केस में नैब ओल्ड हेडक्वार्टर्स में पेशी। डीजी नैब रावलपिंडी इरफान मंगी की सरबराही में 4 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम को बयान रिकॉर्ड करा दिया। तफ्तीश के दौरान नैब टीम ने पूछा कि आप जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर हैं, निजी डेवलपर के साथ मुआहिदा कब किया, क्या मुआहिदे पर आपके दस्तखत हैं। इरफान नईम मंगी ने भी ज्वाइंट वेंचर पर बराह रास्त सवालात किए। 1 घंटा तक पेशी के दौरान बिलावल बेशतर सवालों का तहरीरी जवाब देने पर इसरार करते रहे। नैब ने वाज़ेह जवाब न मिलने पर 35 निकाती सवालनामा थमा दिया और 2 हफ्तों में जवाब देने की हिदायत कर दी। जराये का कहना है कि बिलावल भुट्टो ज्वाइंट वेंचर ओपल से मुतल्लिक नैब की तहकीकाती टीम को मुतमईन न कर सके। जो रिकॉर्ड उन्होंने पेश किया वो उनके पुराने तहरीरी बयान की भी नफी करता है। पेशी के बाद बिलावल ने नैब पर हरासा करने का इल्जाम आयद किया और कहा कि नैब को निजी लेन देन की तहकीकात का हक नहीं, अपनी बहन को मुतबादिल भी करार दे दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन के लिए आसिफा भुट्टो जरदारी मौजूद होगी। अगर मैं गिरफ्तार होता है तो फिर मेरा
आवाज़ आसिफा भुट्टो जरदारी होगी। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नैब बिलावल के खिलाफ जेवी ओपल केस की तहकीकात कर रहा है। आसिफ जरदारी सदर बने तो बिलावल अमीर हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने बिलावल को बेगुनाह नहीं मासूम कहा। शरीफ आदमी तो सियासत में आके वजारत में आके गरीब हो जाता है, वो अपनी जायदादें बेच के जमीनें बेच के अपने पैसे पूरे करता है। आप ऐसे होनहार थे कि आप इधर आप सदर मुमलिकत हैं, आपकी तमाम डिक्लेयर्ड आमदन है और 1.25 अरब रुपए की आपने जायदाद बना ली। उसकी पूछगछ के लिए आपको बनाया गया था। बिलावल साहब को बेगुनाह तो खैर उन्होंने हरगिज नहीं कहा था, ये जरूर शायद कहा था कि वो मासूम है, लेकिन ऐसी चीज तो रोज शेख रशीद भी बिलावल के बारे में कहते रहते हैं। इससे कबल बिलावल भुट्टो की पेशी के मौके पर जियालों की बड़ी तादाद नैब ओल्ड हेडक्वार्टर पहुंची, लेकिन किसी को भी अंदर जाने की इजाजत न दी गई। क्या हुकूमत ने MKM को मना लिया है? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात हुई, जिसमें MKM के तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालिबात पर बातचीत की गई। तर्जुमान MKM का कहना है अभी खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वजारत से इस्तीफा वापस नहीं लिया। क्या तहरीक इंसाफ और MQM के दरमियान बर्फ पिघल गई? वजीर आजम इमरान खान से MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात हुई। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सिंध के तरक्याती मंसूबों से मुतालिक अहम इजलास में शिरकत की। इजलास के दौरान वजीर आजम ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को खुशामदीद कहा। इस मौके पर कराची के तरक्याती मंसूबों में पेशरफ्त का जायजा लिया गया, जबकि सिंध के लिए फंड्स की फराहमी से मुतालिक मामलात पर मुशावरत की गई। तर्जुमान MQM ने कहा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने असद उमर से मुआहिदों पर अमल दरामद के सिलसिले में मुलाकात की। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वफाकी वजारत से दिया गया इस्तीफा वापस नहीं लिया। MQM के अलावा हुकूमत के एक और अहम इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने कहा मुस्लिम लीग काफ और PTI एक पेज पर हैं, हुकूमत के साथ मिलकर बहरानों का मुकाबला करेंगे। PTI के साथ है, इंशाल्लाह साथ खड़े हैं और समझाते भी रहेंगे। समझाते हैं अपनी फिक्र की वजह से समझाते हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने मजीद कहा मौजूदा बहरान 10 साल की गलत पॉलिसियों का नतीजा है। बल्दियाती इदारे होते तो हुकूमत को पेचीदगियों का सामना न करना पड़ता। शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल को क्यों गिरफ्तार किया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब से बड़ा सवाल पूछ लिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, नैब लोगों की तस्दीक नहीं कर सकता। मजीद कहा कि मुतमईन ना किया गया तो गिरफ्तारी गैर कानूनी हिरासत कहलाएगी। अदालत ने चेयरमैन नैब के वारंट गिरफ्तारी जारी करने के इख्तियारात पर भी सवाल उठा दिया। शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल की जमानत की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने एहसन इकबाल की गिरफ्तारी बारे इस्तफसार किया तो नैब प्रोसिक्यूटर ने रिकॉर्ड टेम्परिंग की वजह बयान की और फरार का खदशा जाहिर कर दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स ये कि एहसन इकबाल तो अब वजीर नहीं, वो कैसे रिकॉर्ड टेम्पर कर सकते हैं। फरार का खदशा था तो नाम ECL में डालना चाहिए था। बगैर जरूरत गिरफ्तारी बुनियादी हुकूक सल्ब करने के मुतरादिफ है। मुतमईन नहीं किया तो हक तलफी होगी, हार्डशिप का केस बन जाएगा। एहसन इकबाल के वकील के दलाइल पर चीफ जस्टिस ने नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम को गैर जरूरी करार दिया और चेयरमैन नैब के वारंट के इख्तियारात के ताय्युन की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि केस पर तफसीली फैसला दिया जाएगा। LNG स्कैंडल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ शवाहिद और गिरफ्तारी की वजूहात तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि गिरफ्तारी का गलत इस्तेमाल भी करप्शन है। इस तरह तो करप्शन खत्म नहीं होती। अदालत ने दोनों केसेस की समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बरतानवी काबीना में हैरान कुन तब्दीलियां सामने आ गईं। साजिद जावेद अपने ओहदे से इस्तीफा दे चुके हैं, जबकि उनकी जगह ऋषि सुनाक नए वजीर खजाना बन गए। रिपोर्ट देखिए। बरतानवी काबीना में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां कर दी गईं। वजीर खजाना साजिद जावेद ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह ऋषि सुनाक को इस ओहदे पर फाइज कर दिया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आलोक शर्मा को एंड्रिया लेटसम की जगह वजीर तजारत का कलमदान मिल गया है।
वजीर माहौलियात थ्रेसा वेलर्स को भी ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया, जबकि वजीर हाउसिंग एश्तर मैकवे और वजीर बराए शुमाली आयरलैंड जोलिन स्मिथ से भी वजारत का कलमदान वापस ले लिया गया। इनके अलावा अटार्नी जनरल जेफरी कॉक्स भी अपने ओहदे से फारिग कर दिए गए हैं। वजीर खारजा डोमिनिक राब और वजीर दाखिला प्रीति पटेल अपने ओहदों पर बरकरार रहेंगे। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने गुज़श्ता साल जुलाई में साजिद जावेद को वज़ीर ख़ज़ाना मुकर्रर किया था और वो बतौर अक़लियती शहरी इस आला तरीन मनसब पर पहुँचने वाले पहले बरतानवी शहरी हैं। पाकिस्तानी नयाद साजिद जावेद थेरेसा मे के मुस्तफ़ी होने के फैसले के बाद वज़ारत उज़्मा के मनसब की दौड़ में भी शामिल रहे। काबीना से अलहदगी और वजारत से इस्तीफ़ा पर साजिद जावेद का रद्दअमल भी आ गया। कहते हैं उनके लिए इस्तीफ़े के अलावा कोई रास्ता ही बाकी नहीं बचा था। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। It's been a huge honour to serve as Chancellor of the Exchequer, and whilst I was very pleased that the Prime Minister wanted to reappoint me, I was unable to accept the conditions that he had attached. So I felt I was left with no option other than to resign. Now my successor has my full support, and the Prime Minister continues to enjoy my full support, as does the government. The conditions that were attached was a requirement that I replace all my political advisors. These are people that have worked incredibly hard on behalf of not just the government but the whole country, done a fantastic job. I was unable to accept those conditions. I don't believe any self-respecting minister would accept such conditions, and so therefore I felt the best thing to do was to go. बरतानवी इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीलियों से कॉमनवेल्थ ममालिक के बाशिंदों को फ़ायदा हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के तर्ज पर बनने वाले पॉइंट सिस्टम से भी पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका के हुनरमंद अफराद फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी पर ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान ने माहिर कानूनी इनाम राना से बातचीत की है, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन में माहिर कानून इनाम राना साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि जो इमिग्रेशन कवानीन के अंदर इस वक्त बड़ी तेज़ी से तब्दीली आ रही हैं जब से ये ब्रेग्जिट हुआ है, तो क्या ये तवक्को की जा सकती है कि आने वाले दिनों में जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं उनके लिए कोई ऐसी इमिग्रेशन पॉलिसी है जिससे जो है जो यहाँ पर गैर कानूनी तारकीन वतन रह रहे हैं उनके लिए कोई उम्मीद की किरण नज़र आ रही है उनके लिए? देखिए वन साहब, पोस्ट ब्रेग्जिट बहुत सी चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं। एक तो जो ट्रांजिशन पीरियड है 31 दिसंबर तक का, उसके बाद फौरी तौर पे यूरोपियन नेशनल्स के लिए भी वही रूल्स लागू हो जाएंगे जो कि नॉन यूरोपियन नेशनल्स के लिए हैं, जिसमें मिनिमम वेज भी शामिल होगी। यकीनन ये उम्मीद की जा रही है कि जो नॉन यूरोपियन या कॉमनवेल्थ के सिटीजन्स हैं उनको प्रेफरेंस कहा जाए या कहा जाए कि ज़्यादा उनके चांसेस होंगे कि उनको इमिग्रेशन पॉलिसीज़ उनके लिए नरम की जाएंगी। हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ये इरादा ज़ाहिर कर चुकी है कि मिनिमम सैलरी जो है वो उसको कम कर देंगे ताकि ज़्यादा लोग जो हैं वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इस वक्त बहुत ज़्यादा रूमर्स मौजूद हैं जो तारकीन वतन यहाँ पर ओवर स्टेयर हैं उनके हवाले से ये कहा जा रहा था कि शायद कोई एमनेस्टी स्कीम अनाउंस होगी, जो अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियल स्टेटमेंट्स के वजह से हमें ये लगता है कि शायद ऐसे कुछ आइडियाज़ ज़ेर गौर हैं। उम्मीद भी यही की जानी चाहिए और मेरे ख़्याल से मौजूदा सूरत हाल के अंदर जब ब्रेग्जिट के बाद इस मुल्क की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी फ्रेश ब्लड की, तो शायद ये बेहतर होगा कि एमनेस्टी स्कीम अनाउंस की जाए। अच्छा इनाम राना साहब, हमने देखा है कि जो इमिग्रेशन एडवाइजरी कमेटी है उन्होंने अपनी तजावीज़ भी दी हैं जिसमें टायर 1 वीज़ा आपने देखा उसके अंदर चेंजेस आई हैं। इसके अलावा जो स्किल्ड जो ऑस्ट्रेलियन बेस्ड उस तरह का जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है वो मुतारफ़ करा जा रहा है, इससे कितना फ़ायदा होगा कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ को? मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसकी रीज़न ये है कि स्किल्ड बेस्ड जॉब्स के अंदर हमेशा कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान या बांग्लादेश के लोग यूरोपियंस की निस्बत ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं। अभी तक यूरोपियन यूनियन की वजह से यूरोपियन नेशनल्स एक एडवांटेज लेते रहे हैं, डॉक्टर्स को हम देखते हैं या बाकी प्रोफेशंस के अंदर, लेकिन अब ये होगा कि इस किस्म की किसी भी स्कीम की सूरत में पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोगों को ज़्यादा चांस मिलेगा कि वो इन स्कीम से फ़ायदा उठाकर यहाँ पर आ सकें। फ़िल वक्त जो एंटरप्रेन्योर वीज़ा ख़त्म करने के बाद इनोवेटर और स्टार्टअप मुतारिफ़ करवाए गए थे, उम्मीद की जा रही है कि कुछ नई स्कीम सामने लाई जाएंगी जिससे इन्वेस्टर को यूके की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट किया जा सके और बाकी के जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लाए जा सकें। इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए और यही उम्मीद की जा रही है कि नई स्कीम सामने आएंगी। अच्छा ये बताएं बात के कहते हैं कि बोरिस जॉनसन जो इस वक्त बरतानी वज़ीर-ए-आज़म हैं अपने वादे के बहुत पक्के हैं
जब वो मेयर ऑफ लंदन थे तो उन्होंने बड़ी उम्मीद दी कि जो गैर कानूनी तारकिन वतन है इनको कुछ ऐसा कोई पैकेज या कोई ऐसी चीज़ अनाउंस होनी चाहिए ताकि वो कौमी धारे के अंदर आ जाए। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर जब मेयर थे तो वो यकीनन ये कहते रहे हैं, लेकिन सियासतदान दुनिया में किसी भी खित्ते का हो, उसके बयानात वक्त और हालात के मुताबिक बदलते हैं, इंटेंशंस बदलती हैं, लेकिन उनका ये स्टांस मौजूद रहा है और मेरे ख्याल से वो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी कई बार आदा कर चुके हैं अपनी इस इंटेंशन का। इसी वजह से ये उम्मीद ज़्यादा जागी है कि वो अपना ये वादा या जो उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था उसे अमली जामा पहनाते हुए कोई ऐसी स्कीम लाएंगे जिससे गैर कानूनी तार के वतन लीगल रेगुलराइज करके अपना इमिग्रेशन स्टेटस इस मुल्क की इकॉनमी के लिए एक मुस्बत इजाफा पेश कर सके। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। जिब्राल्टर हमारा है, उसे स्पेन को नहीं देंगे। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर लॉर्ड नज़ीर अहमद की बार्सिलोना में 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, ब्रेक्जिट के बाद बरतानिया ब्रसल्स के ब्यूरोक्रेट कंट्रोल से निकलकर दुनिया भर में बराह रास्त तजारत कर सकेगा। उनका मजीद कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। जिब्राल्टर भी एक हिस्सा है, उसे किस तरह से उसकी तकसीम होगी और वहाँ पे रहने वालों का जो मुस्तकबिल है वो क्या होगा? जिब्राल्टर हमारा है, ब्रिटिश, सो हम वो आपको नहीं देने वाले। इस पे टेंशन्स पहले भी चलती रही हैं, तो पहले तो यूरोपियन यूनियन जो है इसको रिजॉल्व करता रहा है। मेरे ख्याल में जो स्पेनिश गवर्नमेंट है उसको भी रियलिस्टिक रहना चाहिए, क्योंकि मिलिटरीली बरतानिया से ये कभी भी छीन नहीं सकते। हाँ, जो डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि जिब्राल्टर की सर्वाइवल भी स्पेन के साथ ही लिंक्ड है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी बिजनेस जो है वो स्पेन के साथ ही, क्योंकि नज़दीक तरीन यानी ये तो इसलिए ये इनके साथ ही वो बेहतर है ट्रेड करते हुए। और उनके जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ऐसे ही है जिस तरह नॉर्दर्न आइलैंड और सदर्न आइलैंड के अंदर जो हमारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। यूरोप में बसने वाले जो पाकिस्तानी हैं वो बेहतर मुस्तकबिल के लिए यूके सेटल होना बड़ी खुशी का बायस समझते हैं। क्या समझते हैं, उनकी मुश्किलात बढ़ेंगी? जिनके पास तो यूरोपियन पासपोर्ट होगा, जिसके पास स्पेनिश पासपोर्ट होगा, मेरे ख्याल में उनकी मुश्किलात इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी। लेकिन जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, यहाँ की रेजिडेंसी है, उनके लिए थोड़ा सा चैलेंज होगा, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या पुलिस ऑफिसर हैं या सोशल सर्विसेज में, बहुत सारी लिस्ट उन्होंने वो पब्लिश की है जिन लोगों की हमें ज़रूरत है, तो वो उन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। लेकिन जो नॉर्मल वर्कर हैं जिनके क्वालिफिकेशन नहीं, उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। लंदन में नौजवानों में चाकूजनी और दीगर जराइम की रोकथाम के लिए मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से हमारी यूथ हमारा मुस्तकबिल के उन्वान से कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। कॉन्फ्रेंस में मेयर्स, काउंसलर, आला हुकूमती ओहदेदारान और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग शरीक हुए। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। लंदन में मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से हमारी यूथ हमारा मुस्तकबिल के अनवान से कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें MP स्टेफन टिम्स, ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन पुलिस वहीद खान, MP अनमेश देसाई समेत अहम शख्सियात शरीक हुई। न्यूहेम से MP स्टेफन टिम्स ने कहा, मौजूदा हुकूमत जराइम की रोकथाम के लिए बहुत कोशिशें कर रही है। इस सिलसिले में पुलिस की नफरी बढ़ाई जा रही है, जबकि लोगों को भी पुलिस और हुकूमत की मदद करनी चाहिए। This current government is doing. I'm pleased that they have now committed to increase police numbers. They reduced police numbers for a long time. Thankfully, that policy is being reversed. But I'd like to see much more support for councils like Newham to expand their youth services and to encourage partnerships between local councils and organisations. मेंबर पार्लियामेंट और पुलिस एंड क्राइम कमेटी के मेंबर अनमेश देसाई ने कहा, चाकूजनी से गुज़श्ता एक साल के दौरान 135 अमवात हुई, जो कि इंतहाई खतरनाक है। The conference was great. So many people, about 200 people, and it's about future generation, young people. I talked about what the Mayor of London is doing, investing record monies into bringing more police on the streets, but also he has got something called a violent crime reduction unit, which is bringing professionals together, teachers, social workers, police officers, to form strategies
to solve this problem of knife crime, which claimed 135 lives last year. मेट्रोपॉलिटन पुलिस ऑफिसर वहीद खान ने कहा, पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि वो जराइम की रोकथाम पर काबू पाए। इस सिलसिले में वालिदैन, स्कूल्स, फैमिलीज और दीगर इदारों को मिलकर काम करना होगा। So today's conference was trying to bring the community together with our partners, local authorities, with voluntary sectors, charities and so forth, to discuss and raise awareness around how we can work together to tackle the issues that we currently face. Minhaj Welfare Foundation has carried out an amazing event where so many people from different backgrounds, different schools of thought have come together to talk about very serious issues within our local communities, mainly how to tackle the issue of knife crime, which so many important solutions have been raised, such as funding, such as relationship between parents and children and trust, and having means and avenues where children can reach out to us and tell us about the issues that they're experiencing. So it was overall a hugely successful event. जब तक अपनी यूथ को एंगेज नहीं करेंगे, जब तक उनको प्लेटफॉर्म पे उनकी बात नहीं सुनेंगे, तो उस वक्त तक ये जो बेसिक जो क्राइम सोसाइटी के प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व नहीं हो सकते। शुरका ने इस तकरीब के इनेकाद को सराहा और नौजवानों को जराइम की दुनिया से बचाने के लिए ऐसी तकरीबात के इनेकाद पर जोर दिया। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। नौजवान मुसन्निफ और सहाफ़ी इसरार राजा की किताब कश्मीर का अलमिया की तकरीब रुनमाई लुटन टाउन हॉल में हुई, जिसमें बड़ी तादाद में मुकामी सियासी, समाजी और अदबी शख्सियात ने शिरकत की। किताब में दहाइयों से कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम की दास्तान रकम की गई है और कश्मीर की जोग्राफियाई मंजर कशी भी की गई। तफसीलात चौधरी निसार गुलशन की इस रिपोर्ट में देखिए। कश्मीर पर सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं। इसी तरह की एक कावश इसरार अहमद राजा ने भी की है। कश्मीर का आलमिया के उन्वान से एक किताब तसनीफ की, जिसकी रुनमाई ल्यूटन के टाउन हॉल में की गई। इस मौके पर बड़ी तादाद में सियासी और समाजी शख्सियात समेत मकामी कम्युनिटी के नौजवानों ने भी शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान मजीद से हुआ, जिसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत तालब कियानी ने हासिल की। रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने, रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने। इस मौके पर मेयर ऑफ ल्यूटन काउंसलर ताहिर मलिक समेत दीगर शख्सियात का कहना था कि नौजवान मुसन्निफ ने 500 साल कश्मीरी तारीख को बड़े अहसन अंदाज में इस किताब में बयान किया है, जो कि काबिल तारीफ है। कश्मीर का अलमिया आपको 5 सदियों पर मुहित कश्मीर की तारीख से मुतारफ कराएगा। इसमें कोशिश की है मैंने कि हकीकत और सच पे मबनी तमाम हकायक बयान किए जाएं। हाँ, वो हकायक तल हैं, लेकिन वो हकीकत पर मबनी हैं। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है हम लोगों के लिए, कश्मीरियों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए भी, कि हमें क्या करने की ज़रूरत है इस मौके पे जब कश्मीरी जो है वो 70-75 साल से कुर्बानियाँ भी दे रहे हो। मैंने किताब के कुछ बाब पढ़े और मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि वो जो किताब उन्होंने लिखी है उस किताब में चूँकि उन्होंने ये कश्मीर का जो है ना ये कज़िया इसको लिखा है, तो मेरे ख्याल में अब सूरत हाल ये है कि ऐसी ही किताबों और दूसरे जो इज्तिमा या सेमिनार हो रहे हैं उनमें हमने तारीख आज़ादी कश्मीर को आगे लेके जाना है। इसरार राजा साहब ने किताब कश्मीर का अलमिया लिखी है। इसमें इन्होंने नायत मेहनत से काम किया है और इसमें रिसर्च किया है, उसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ल्यूटन में इसरार अहमद राजा की किताब कश्मीर का अलमिया की तकरीब रुनमाई हुई, जिसमें हम सबको मौका मिला आके बात करने का और समझने का और सीखने का कि ये अलमिया है क्या। मैं समझता हूँ कि ये जनाब इसरार अहमद राजा साहब की बहुत बड़ी काविश है। मैं जी नौजवान साफ़ी और स्कॉलर इसरार अहमद राजा को उनकी बेहतरीन इस तालीफ पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। किताब की तकरीब रुनमाई में मेयर ऑफ ल्यूटन काउंसलर ताहिर मलिक, साबिक मेयर रियाज भट्ट, कश्मीरी रहनुमा प्रोफेसर राजा जफर, काउंसलर राजा वहीद अकबर और दीगर शख्सियात ने इसरार अहमद राजा की इस काविश को बेहद सराहा और कश्मीर की आज़ादी के लिए इस तरह की कोशिशों के तसलसल पर जोर दिया। चौधरी निसार गुलशन, 92 न्यूज़, ल्यूटन। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने सफ़ीर कश्मीर की हैसियत से मलाइशिया में इंतहाई मसरूफ़ तरीन दिन गुजारा। उन्होंने मलाइशिया की आला क़यादत वज़ीर ख़ारजा दातू सरी सैफुद्दीन अब्दुल्ला, नायब वज़ीर आज़म वान अजीज़ा वान इस्माइल और मेंबर पार्लियामेंट दातू सरी अनवार इब्राहिम से उनके दफातर में 1-on-1 मुलाकातें की और कश्मीर का मुकदमा पेश किया। तफसीलात जावेद रहमान की इस रिपोर्ट में देखिए।
صدر آزاد کشمیر سردار مسعود احمد خان نے سفیر کشمیر کی حیثیت سے ملیشیا میں انتہائی مصروف دن گزارا۔ آج ان کی ملیشیا کے وزیر خارجہ داتو سری سیف الدین عبداللہ، نائب وزیر اعظم وان عزیزہ وان اسماعیل اور ممبر پارلیمنٹ داتو سری انور ابراہیم سے ان کے دفاتر میں الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں۔ ملیشیا کے رہنماؤں نے سردار مسعود احمد خان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملیشیا کی حکومت اور ملیشیا کے عوام مقبوضہ کشمیر کی ابتر صورتحال سے مکمل طور پر آگاہ ہیں اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے اپنے قائد ڈاکٹر مہاتیر بن محمد کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کشمیری عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ملیشیا کے وزیر خارجہ نے کشمیر میں معاشی، ثقافتی اور سیاحتی شعبہ جات میں سرمایہ کاری کی پیشکش بھی کی۔ صدر آزاد جموں کشمیر سردار مسعود احمد خان نے پاکستان اور کشمیر کی عوام کی جانب سے حکومت ملیشیا، وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر بن محمد اور ملیشین عوام کا جدوجہد آزادی کشمیر میں ان کا ساتھ دینے پر شکریہ ادا کیا۔ ملیشیا میں پاکستانی ہائی کمشنر آمنہ بلوچ، ڈپٹی ہائی کمشنر میاں عاطف شریف، میپم کے صدر حاجی محمد اعظمی عبدالحمید، معروف سماجی شخصیت اور تجزیہ نگار طاہر خان اور ملیشیا کشمیر یوتھ موومنٹ کے عہدیدار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ صدر آزاد جموں کشمیر سردار مسعود احمد خان نے ملیشیا کے وزیر خارجہ اور ملیشیا کے نائب وزیر اعظم کو کشمیری دستکاری کے شاہکار بھی تحائف میں پیش کیے۔ صدر آزاد جموں و کشمیر سردار مسعود خان نے سفیر کشمیر کی حیثیت سے آج ملیشیا کی اعلیٰ ترین قیادت سے ملاقاتیں کی۔ انہوں نے جموں و کشمیر کے عوام، پاکستان کے عوام اور حکومت پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر بن محمد اور ملیشیا کی پوری قوم کا کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی پر شکریہ ادا کیا۔ خدا کرے کہ جنوب مشرقی ایشیا سے اٹھتی ہوئی کشمیر کی یکجہتی کے لیے یہ پرخلوص آواز اپنا اثر دکھا دے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جاوید الرحمان، 92 نیوز، کوالالمپور، ملائیشیا۔ ملائیشیا میں کام کرنے والے پاکستانی محنت کشوں کو مالی تحفظ مل گیا۔ وزارت برائے اوورسیز پاکستانیز اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پاکستان اور سوشل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ملائیشیا کے مابین اہم معاہدہ طے پا گیا ہے۔ تفصیلات کوالالمپور سے جاوید الرحمان کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ملائیشیا میں کام کرنے والے پاکستانی محنت کشوں کے لیے بڑی خوشخبری۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ ملائیشیا کے ثمرات سامنے آنا شروع ہو گئے۔ وزارت برائے اوورسیز پاکستانیز اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پاکستان اور سوشل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ملائیشیا کے مابین ایک اہم معاہدہ طے پا گیا۔ اس حوالے سے کوالالمپور میں سوشل سیکیورٹی ملائیشیا کے ہیڈ کوارٹرز پر ایک باوقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ہیڈ آف چانسلری شہزاد حسین، ڈیفنس اتاشی کمانڈر ابرار اسحاق، ویزا کاؤنسلر محمد افضال طاہر، ڈپٹی ہائی کمشنر میاں عاطف شریف اور کاؤنسلر غلام حیدر سمیت سوشل سیکیورٹی ملائیشیا کے اعلیٰ عہدیداران نے شرکت کی۔ اس تاریخی معاہدے پر پاکستان کی جانب سے ہائی کمشنر آمنہ بلوچ، جبکہ ملائیشیا کی جانب سے محکمہ سوشل سیکیورٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر داتو سری محمد ازمان نے دستخط کیے۔ اس موقع پر پاکستانی ہائی کمشنر آمنہ بلوچ نے معاہدے کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے تحت ملائیشیا میں قانونی طور پر کام کرنے والے رجسٹرڈ محنت کشوں کو کسی بھی حادثہ کی صورت میں مفت طبی سہولیات میسر کی جائیں گی۔ اگر خدا نخواستہ کوئی محنت کش حادثاتی طور پر مشکل معذوری کا شکار ہو جاتا ہے یا اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے لواحقین کو اس کی تنخواہ کے مساوی تاحیات ماہانہ وظیفہ ملتا رہے گا۔ اس معاہدے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستانی ورکرز جو کہ ملیشیا میں کام کر رہے ہیں، خدا نخواستہ کسی بھی ایکسیڈنٹ کی صورت میں یا ان کے انتقال کی صورت میں، تو ان کے جو اینڈ ورک جو ٹائم جو بینیفٹس ہیں وہ ان کی لواحقین تک پہنچ جائیں، اور ان کے جو خدا نخواستہ کسی ایکسیڈنٹ کی صورت میں میڈیکل بلز ہیں وہ ان کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ذمہ داری اٹھائے۔ تو اس معاہدے کے تحت جو امپلائیز ہیں، ملیشین امپلائرز ہیں، وہ اپنے ورکرز کو ان کے ساتھ جو ہے وہ رجسٹر کریں گے، اور پھر وہ اس کے جو فوائد ہیں وہ تمام ورکرز کو ملیں گے۔ سوشل سیکیورٹی ملائیشیا کے چیف ایگزیکٹو آفیسر داتو سری محمد ازمان کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان کے محنت کشوں کی فلاح و بہبود میں سنجیدگی قابل ستائش ہے۔ We need this collaboration because we want to make sure that we streamline all the process of the recruitment of the Pakistani workers. When they come and work here, they have the social protection, and once the social protection is in place, and we need that the follow through and also the execution of the social protection will be done efficiently, and once if
a contingency happen, it will be processed immediately. تقریب کے آخر میں سوشل سیکیورٹی ملیشیا کے سیبداد سری محمد اعظم کی جانب سے پاکستانی ہائی کمشنر آمنہ بلوچ اور دیگر شرکاء کو جذبہ خیر سگالی کے تحت سوینئر اور تحائف پیش کیے گئے. وزیر اعظم عمران خان کے اوورسیز پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے ویژن کو آج عملی شکل دے دی گئی. ملیشیا میں پاکستانی جو محنت کش کام کر رہے ہیں ان کی فلاح و بہبود، طبی امداد اور کسی بھی حادثہ کی صورت میں مالی امداد کے لیے معاہدہ عملی شکل پا گیا. ملیشیا میں رہنے والے محنت کش اور ان کے خاندان وزیر اعظم عمران خان کے اس احسن اقدام کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ جاوید الرحمان، 92 نیوز، کوالالمپور، ملیشیا. بلٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک. آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. کبڈی کے عالمی میلے کا 5واں روز اختتام پذیر. فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں 3 بڑے مقابلے. پاکستان نے آسٹریلیا کو ہرا کر سیمی فائنل کا ٹکٹ کٹوا لیا. بھارت نے ایران اور جرمنی نے سیرا لیون کو پہلوانوں کو مات دی. اور بڑے مقابلوں کا احوال مزید دیکھیے بلال سکندر کی اس رپورٹ میں. اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد دوسرے روز بھی کبڈی شائقین کے نعروں سے گونجتا رہا. عالمی کپ کے بڑے مقابلے میں پاکستانی پہلوانوں نے آسٹریلیا کو چاروں شانے چت کر دیا. پاکستان کے 62 پوائنٹس کے مقابلے میں آسٹریلوی ٹیم صرف 25 پوائنٹ تک محدود رہی. دوسرے میچ میں انڈیا اور ایران کے درمیان جوڑ پڑا. بھارتی سورماؤں کے داؤ پیچ کے آگے ایرانی پہلوان بے بس نظر آئے اور 11 پوائنٹ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. جرمنی اور سیرا لیون کا میچ بھی یک طرفہ رہا، جس میں جرمنی کی ٹیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 14 کے مقابلے میں 43 پوائنٹس کے ساتھ جیت کا صحرا سجایا. ایونٹ میں دوسری جیت کے ساتھ پاکستانی ٹیم نے عالمی کبڈی کپ کے سیمی فائنل کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا. کیمرامین علی رضا کے ساتھ بلال سکندر، 92 نیوز، فیصل آباد. اور اب کچھ بات رنگ بدلتے موسم کی. آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری. برف پوش پیر چناسی پر سیاحوں کا ہلا گلا. ایک دوسرے پر برف کے گولے برسائے اور روایتی دھنوں پر رقص کر کے ٹھنڈے موسم کو گرما دیا. مظفر آباد سے دیکھتے ہیں سرفراز میر کی رپورٹ. آزاد جموں و کشمیر کے پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی. سیاحتی مقام پیر چناسی کے دلکش نظارے. جنت نظیر آزاد کشمیر کے پہاڑوں پر برف باری نے قدرتی حسن کو دوبالا کر دیا، جبکہ پیر چناسی کو 4 چاند لگا دیے. برف باری ہوتے ہی سیاحوں نے پیر چناسی کا رخ کر لیا. منچلوں نے ایک دوسرے پر برف کے گولے برسائے اور روایتی دھنوں پر رقص کر کے ٹھنڈے موسم کو گرما دیا. سیاحت کے دلدادہ شہریوں نے پیر چناسی کے قدرتی نظاروں کی خوب تعریف کی. پہلی بار برف باری دیکھی ہے، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. برف باری میں بہت انجوائے کر رہے ہیں. ریکمینڈیڈ جگہ ہے کہ بندہ آگے کسی کو ریکمینڈ کرے کہ ایڈونچر کے لیے ضرور آئے. سنو فالنگ ہو رہی ہے، بہت مزہ آ رہا ہے. ٹھنڈ ہے ہلکی ہلکی لیکن آزاد کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے، جس سے وادی گریس لیپا ویلی میں نظام زندگی شدید متاثر ہے. وادی نیلم کے بالائی علاقوں سمیت خوبصورت مقامات کی رابطہ سڑکیں بحال کر کے سیاحت کو مزید فروغ دیا جا سکتا ہے. سرفراز میر، 92 نیوز، مظفر آباد. پاکستان کی معروف پشتون گلوکارہ گل پنرا اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے مانچسٹر پہنچ چکی ہیں، جہاں وہ مختلف تقریبات میں گائیکی کا مظاہرہ کریں گی. اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے گل پنرا کا کیا کہنا تھا. پاکستان کا علاقائی میوزک دنیا بھر میں شوق سنا جاتا ہے. معروف اینکر پرسن توثیق حیدر، تقریب کے میزبان اور دیگر اوورسیز پاکستانیوں نے بھی اس موقع پر اظہار خیال کیا. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں.
अस्सलाम वालेकुम फैंस, मैं गुलपाड़ा और मैं आई हूँ यहाँ पे यूके मैनचेस्टर आई हूँ, आज पहुँची हूँ। मेरे इवेंट्स है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे जितने भी फैंस यहाँ पे यूके में हैं, मैनचेस्टर में हैं, बर्मिंघम में हैं, सब मेरे इवेंट्स पे आएंगे और मेरे इवेंट्स को कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे जितने भी पख्तून फैंस हैं और उसके अलावा जो उर्दू बोलते हैं, पंजाबी, जितने भी मेरे फैंस हैं जो ज़ुबान भी बोलते हैं, इंशाल्लाह सब आएंगे मेरे इवेंट्स में। 14 तारीख को बर्मिंघम में नवाब बर्मिंघम में और 15 तारीख को मैनचेस्टर में द शेरिडन स्वीट मैनचेस्टर में शाम 7 बजे और फिट सा कॉन्सर्ट करेंगे। और मेरा ख्याल है यूके की हिस्ट्री का हमारे पश्तून बहन भाइयों, चाहे उनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से हो, पाकिस्तान से हो, उनके लिए डेडिकेटेड इस लेवल का इतना हाई एंड शो मेरा ख्याल है पहली बार होने जा रहा है। हमारी ठीक ठाक फ़ैन फॉलोइंग है, हम इंतहाई खुश हैं कि हम उनके लिए कंटेम्प्रेरी पश्तो मौसीकी लेकर आए हैं, वो नहीं लेकर आए हैं जो कि अक्सर आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं केपी की मौसीकी से। दिस इज़ समथिंग न्यू। आप सबको पता है कि यूके में हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, पश्तून कम्युनिटी, जो कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से बिलोंग करती है और काफ़ी अरसे से यहाँ पे है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपनी कम्युनिटी के लिए एक प्रोग्राम और एक इवेंट अरेंज करें। इसलिए हमने खुमारियान और गुलपाड़ा, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनकी अपनी काफ़ी फॉलोइंग है। मन आमद के इश्क फरियाद खुनम, मन आमद खिनास बुनियाद खुनम, मन आमद वाई वाई, मन आमद के इश्क फरियाद खुनम, मन आमद खिनास बुनियाद खुनम, मन आमद इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।